Hello, my dear students. Today I am taking your third lecture of alkyl halide or haloalkane. In previous two lectures, we studied about what are the haloalkanes, what are the haloarenes, its classification of haloalkane and haloarenes, and then after in the second chapter, we deal about the IUPAC name or general name of the particular alkyl halides. And now, this is the third lecture, and third lecture we have to study about the preparation of the alkyl halide. And in the preparation of alkyl halide, studied about the halide in halide, chloride products, bromide products, iodide products, and chloride products. Chloride products are mainly formed because the electron gain enthalpy of chlorine is highest. That's why maximum products of chlorides are obtained. Chloride products are obtained in a less amount or only one reactions are available in your course. This is the Schwarz reaction. जो अभी हम आपको explain करेंगे. And in the preparation of bromide, particularly studied about the Hunsaker reaction. This is the specific reaction of the bromo compound. And then after we use the Plankiston reaction for the preparation of the iodo product. So now study the first method of the preparation. As you know, हमारा हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला आपने पढ़ा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील द preparation from the alkane. You know, alkanes are those which containing in between carbon and carbon single bond is present. And in the previous lecture हमने आपको बताया था those which containing the single bond they show the substitution reaction. And in substitution reaction one or more than one hydrogen atom gets substituted by functional group. देखिए किस तरीके से होता है. So first method is alkane and we use the method this is called as the halogenation. निश्चिता में हेलोजन बनाना है तो हेलोजनेशन करना ही पड़ेगा. एंड इन हेलोजन you know chloride, bromide and iodide is present. These are the element of the group 17. So if we use the F2 then the process is called as the chlorination. And for Cl2 use the term chlorination, for Br2 we use the term bromination and for iodine we use the term iodination. तो अभी हमारे क्वेश्चन में जैसे डिमांड होगी उसको हम यूज करेंगे. ब्रोमीन का अगर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन का डिमांड होगा तो आयोडीनेशन एंड सो ऑन. Halogenation carried out in two steps, in presence of light or in absence of light. If the reaction is takes place in presence of light, for light particularly use the term H mu. अगर लाइट होती है तो हमें H mu वर्ड यूज करना होता है. And in presence of light, all the hydrogen atom देखिए कैसे ये हमारे पास alkane यानी फर्स्ट मेंबर है मीथेन. ध्यान से समझिएगा फर्स्ट मेंबर alkane का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन. मीथेन react with chlorine in presence of light. In presence of light, all the hydrogen atom get substituted. एक बार में वो क्या करेगा सारे हाइड्रोजनों को हटा देगा और इन हाइड्रोजनों की जगह पे क्या आ जाएगा Cl. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया तो बताया था कि जब हाइड्रोजन हटेगा हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं हटेगा, वो HCl के फॉर्म में रिमूव होगा. तो ये तो पूरे हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ऑल द हाइड्रोजन एटम गेट रिमूव, एक बार में रिमूव हो गए. फाइनली प्रोडक्ट क्या आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड. इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म अलोंग विद बाई प्रोडक्ट, क्योंकि जो आपने हाइड्रोजन हटाया है उसका बाई प्रोडक्ट भी बनेगा. चार यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे 4, तो यानी टोटल हमें कितने लेने चाहिए थे 4 2 8, क्योंकि 4 Cl एंटर करेंगे और 4 Cl हाइड्रोजन के साथ में बाई प्रोडक्ट बना के क्या निकाल देंगे 4Cl. सो अगर हमारे क्वेश्चन की डिमांड है हाउ टू कन्वर्ट मीथेन इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड तो हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं. बट अगर हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड आ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट द मीथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड और इन क्लोरोफॉर्म, तो कैसे करेंगे. सो दिस इज द सेकेंड टाइप और दिस इज द इन एब्सेंस ऑफ लाइट. सेकेंड हेडिंग आ गई अब आपकी इन एब्सेंस ऑफ लाइट. इन एब्सेंस ऑफ लाइट वन बाय वन हाइड्रोजन एटम गेट सब्स्टिट्यूटेड. एक एक करके हाइड्रोजन एटम हटेंगे.
Therefore, product is formed. Various products are formed. अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनेंगे. देखिए कैसे. पहले मैंने CH4 लिया, रिएक्शन कराया Cl2 से, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ. जैसा मैंने आपको रिएक्शंस में लिखाती हूँ, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा. जैसे हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CH3Cl. दिस इज कॉल्ड एज द मिथाइल क्लोराइड. ठीक है, क्या बना? मिथाइल क्लोराइड. फर्दर रिएक्शन करेगा. अब ये जो H हटा था, उसने Cl से रिएक्शन करके क्या रिमूव कर दिया? HCl. फर्दर रिएक्शन कर रहा है इससे Cl2 से, क्या रिमूव होगा? HCl. इसके मतलब ये हाइड्रोजन भी गया और इस हाइड्रोजन की जगह भी क्या आ गया? Cl. फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया? CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड. नाउ फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन. फिर से रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से. अब के बाद एक हाइड्रोजन और हटा दिया, यहाँ भी आ गया Cl. And the product, the name of this compound is CaCl3. This is called as the chloroform. क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म. एंड फाइनली अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन और बचा है. ये हाइड्रोजन एटम को भी रिमूव करना है, फिर से रिएक्शन करेगा और ये Cl यहाँ पे लग गया और प्रोडक्ट हो गया हमारे पास CCl4. तो ये आपके देखिए, अगर if the reaction takes place in the absence of light, then various byproducts are obtained. अब हमें ये रिएक्शन क्यों यूज करना पड़ा? मान लीजिए हमारे रिएक्शन की डिमांड थी. अभी जब आप लोग अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन देंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, जनरली आपको व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू कन्वर्ट, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू क्लोरोफॉर्म. तो सिंपल मेथड यूज करेंगे यही वाला कि अगर हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है मीथेन से तो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. हमें ये मेथड यूज नहीं करना. क्यों? क्योंकि इस मेथड से तो डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट आता है क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड. एक बात और याद रखना है कि हमें हमेशा ही प्रोडक्ट्स के जो नाम होते हैं वो जरूर लिखने चाहिए. अगर आप एग्जामिनेशन में नाम नहीं लिख के आते तो आपको मार्क्स नहीं मिलते. इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे उनके नीचे नाम लिखते जाए. तो फर्स्ट मेथड हो गया हमारा फ्रॉम एल्केन, और एल्केन के अंदर हमने दो स्टेप लगाए, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट. ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम एल्कीन. अब मैंने एल्केन से दोनों मेथड यूज कर दिया हैलोजिनेशन में. अब इसके बाद हमारा सेकंड मेथड आता है फ्रॉम एल्कीन. ठीक है. अब क्योंकि आपने पढ़ा हैगा हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. एल्कीन में भी हमारे पास कैटेगरी है. कैसे कैटेगरी है? एल्कीन सिमेट्रिकल भी होते हैं और एल्कीन अनसिमेट्रिकल भी होते हैं. अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उनके पास हाइड्रोजन का नंबर इक्वल होता है तो वो सिमेट्रिकल बनाते हैं. लाइक दैट सिमेट्रिकल एल्कीन का हमने एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन. एल्कीन का पहला मेंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 2 एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सो देयर नेम इज N plus इन इज इक्वल टू ईथीन. रिएक्शन विद HCl. अब देखिए एल्कीन के रिएक्शन किससे कराएंगे? एल्कीन रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक एसिड लाइक HCl, लाइक HBr, लाइक HI. हम इनका यूज कर सकते थे. अब आपको एक तो बात बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि अगर हमें हैलोजन बनाने हैं तो हमें हैलोजन से रिलेटेड ही तो केमिकल डालना पड़ेगा. लाइक दैट अगर हमें कोई चीज़ मीठी बनानी है तो हमें शक्कर डालनी पड़ेगी, या घर में गुड़ अवेलेबल होगा तो वो डालना पड़ेगा. तो ऐसे हमें अपने केमिस्ट्री में भी दिमाग लगाना है कि हमें जो डिमांड है हमें वो चाहिए. लाइक दैट हमें अल्कोहल बनाना है तो हमें OH ग्रुप ढूंढना चाहिए कि किन किन रिएजेंट्स के पास OH लगा है. हमें हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हमें हैलोजन वाले कंपाउंड्स देखने चाहिए कि किन किन के पास हैलोजन प्रेजेंट है. HCl के पास है, Cl2 के पास प्रेजेंट है, PCl5, PCl3, SOCl2. देयर आर वेरियस रिएजेंट्स व्हिच गिव्स द हैलोजन. अलग अलग रिएजेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं. अब देखिए जब हमें ये रिएक्शन कौन सा होगा? टाइप ऑफ रिएक्शन एडिशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड का स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सा होता है? एडिशन. एडिशन में क्या होता है? समथिंग इज एडेड. हम जो भी डालेंगे
वो बराबर बराबर ऐड हो गए, इक्वल, दोनों को आधा आधा मिला। लेकिन फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 और Cl। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइल क्लोराइड। In addition reaction, only product is formed without formation of byproduct. इसमें केवल और केवल प्रोडक्ट बनता है, बाई प्रोडक्ट नहीं। नोट कर लीजिएगा। Now the next method from unsymmetrical। अब अगर मान लीजिए हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्केन हो तो क्या होगा। अच्छा, अनसिमेट्रिकल एल्केन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द मार्कोनिकॉफ रूल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कोनिकॉफ रूल। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन 12th क्लास में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, व्हेन अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड, अनसिमेट्रिकल मतलब 3 5 7, अनसिमेट्री है ना। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, 3 नंबर का कार्बन या 5 नंबर का कार्बन। अब अनसिमेट्रिकल का मेन पॉइंट क्या होता है कि जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं उनके पास हाइड्रोजन का नंबर इक्वल नहीं है। ऊपर वाले केस में देखो डबल बॉन्ड है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर इक्वल है, और जब इक्वल होता है तो डिवीजन करना बहुत इजी होता है, आधा आधा बांट दो। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो डिवीजन करने में कुछ रूल्स लगेंगे, और वही रूल मार्कोनिकॉफ ने दिया। व्हेन asymmetrical unsaturated hydrocarbon react with inorganic acid, ये किससे रिएक्शन करेगा, इनऑर्गेनिक। अभी हम वही लगा रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड HCl HBr HI को कहते हैं। इनका जो वर्क था वो स्पेसिफिक HBr पे था। तो इनका ये कहना था, the negative part of the reagent is attached to that carbon atom which contains the lesser number of hydrogen atom। मार्कोनिकॉफ का कहना था कि जो नेगेटिव रिएजेंट होगा वो हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। Natural है कि positive is moved toward that carbon atom which contain the more number of hydrogen atom। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल बताएं, इसके मतलब है कि मार्कोनिकॉफ में हमेशा 2 डिग्री का प्रोडक्ट बनता है। कैसे 2 डिग्री का प्रोडक्ट बना, ये बना CH3 और ये हुआ हमारे पास CH, नीचे आ गया Br और ये हो गया CH3, और नाम हो गया इसका 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या बना, 2-ब्रोमोप्रोपेन। सो इन मार्कोनिकॉफ ऑलवेज रिमेंबर 2 डिग्री प्रोडक्ट्स और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। मान लीजिए आपसे उसने कहा कि प्रोपीन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, सिंपल सी बात है, प्रोपीन की हम HBr से रिएक्शन करा देंगे, नेगेटिव उस पर अटैच होगा जिसपे कि कार्बन का नंबर कम, तो नेचुरल पॉजिटिव उस पर अटैक करेगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ गया, 2-ब्रोमोप्रोपेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एंटी मार्कोनिका। अगला कहलाता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। एंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ को हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, ऑल्सो भी कॉल्ड एज द हराश इफेक्ट। कई तरीके के नाम से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक में कभी भी पेपर डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको, क्वेश्चन में आपको वो आइडेंटिटी करने के लिए कुछ बताता है, जैसे हमने पेरोक्साइड डाल दिया, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो नेचुरली फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ। देखिए क्या होगा, अब अगर हमने एंटी मार्कोनिकॉफ किया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, इनऑर्गेनिक एसिड्स। मैंने इसको यहाँ लिख दिया। नेचुरल है कि आपकी बार रूल अलग हो रहा है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। If the reaction carried out in presence of peroxide, the negative part of the reagent is attached to that carbon which contain the more number of hydrogen atom। देखिए रिएक्शन हमारा अलग हो गया, नेगेटिव उसके पास पहुंचा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, तो निश्चित है पॉजिटिव उसके पास पहुंचेगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम। इसके मतलब क्या हुआ, इन एंटी मार्कोनिकॉफ, अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ बनाएंगे तो हमेशा ऑलवेज रिमेंबर 1 डिग्री प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। मार्कोनिकॉफ से 2 डिग्री के मिलते हैं, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ से हमेशा
1 डिग्री का प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड हो गए, किससे, फ्रॉम एल्केन और फ्रॉम एल्कीन। एल्केन के मेथड भी आपको क्लियर हो गए और एल्कीन के मेथड भी क्लियर हो गए। नाउ अब इसके बाद हमारे पास अगला मेथड आता है फ्रॉम एल्कोहल्स। अब बनाएंगे हम किससे, एल्कोहल से डिफरेंट डिफरेंट हम बाई प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। कैसे, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, ये हम अभी आपको पूरा फ्लो चार्ट भी दे देंगे लास्ट में, क्योंकि जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हम सारे रिएक्शंस नहीं लिख के याद कर पाते। पहले जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक एक रिएक्शन लिख लिख के याद करना चाहिए, और फाइनली जब हमें एग्जामिनेशन देने जाना है तो हमें फ्लो चार्ट देखना चाहिए। तो फ्लो चार्ट में मैंने किस तरीके से रिएक्शंस को किया है, कौन कौन से मेथड यूज किए। जैसे आपने सबसे पहला मेथड यूज किया था फ्रॉम एल्केन, उसके बाद अपन ने सेकेंड मेथड यूज किया मैंने आपको फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के अंदर दो मेथड यूज किए, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में इक्वल प्रोडक्ट बने, बट अनसिमेट्रिकल के अंदर दो मेथड आ गए, मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का। नाउ इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, और थर्ड पॉइंट है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल्स। अब हम बनाएंगे किससे, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है, ROH होता है। एल्कोहल के अंदर हमारे पास कई सारे मेथड है। नंबर 1 विद HCl, नंबर 2 विद PCl5, नंबर 3 विद PCl3, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दिस इज द रिएक्शन विद SOCl2। एल्कोहल से हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास कई सारे रिएजेंट हैं, बहुत ही सिंपल, ये आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। और इसके बाद अब हम अपना एल्कोहल के रिएक्शन आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होता है। मैंने एल्कोहल का मेंबर ले लिया, क्या, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराई, HCl से। सिंपल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड का पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ आप पेपर में ऑर्गेनिक आप लोगों को टफ लगती है, ये मालूम है, लेकिन ऑर्गेनिक अगर तरीके से पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए तो बहुत इजी है, फुल मार्क्स मिलते हैं, और हमारे यहाँ से तो बच्चों के फुल मार्क्स ही आते हैं। देखिए सिंपल से ट्रिक होती है कि हम इसका बैक, इसका माइनस और इसका प्लस हटा देते। इसका माइनस और इसका प्लस हटाया तो क्या हुआ, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H2O रिमूव हो गया, और मेन प्रोडक्ट आ गया C2H5Cl, और बाई प्रोडक्ट क्या निकला, ऐसा आपको मालूम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड। यही तो बनाना था हमको। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमने यूज किया विद PCl5। ठीक है, अब अगर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए PCl5 का आपको स्टार्टिंग में हैलाइड के चैप्टर में हमको कुछ चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे PCl5 always gives POCl3, PCl5 POCl3 जरूर निकालता है, ये फिक्स होता है। कैसे, देखिए रिएक्शन C2H5OH रिएक्शन विद PCl5, अभी अब मैंने क्या बोला, ये रिमूव करेगा POCl3 और क्या निकालेगा, S। क्यों, P ये लिखा हुआ है, ये वाला O ले लिया। हमको यहाँ ये ध्यान रखना है, ये केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, केवल अल्कोहल की जगह कौन आएगा, हैलाइड। OH हटाना है, इसका O इसने ले लिया, PO। Cl3 अपने पास है, केवल 2 Cl दे रहा है। अब दो में एक H ने बोला, एक HCl हमें भी निकालना है, बचा क्या हमारे पास, C2H5Cl। लीजिए हैलाइड आपका बन गया और नाम हो गया इथाइल क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन को ब्रेक कर करके लिखना, लिख लिख के सीखिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl3। PCl3 से रिएक्शन होगा। अब PCl3 का भी मेन पॉइंट है, PCl3 कहता है कि जब मैं रिएक्शन करूंगा तो मैं H3PO3 जरूर निकालूंगा, ये फिक्स है। आपको किसी के तो बाई प्रोडक्ट याद रखना जरूरी है, जैसे PCl5 POCl3 लिबरेट करता है, PCl3 H3PO3 लिबरेट करता है। अभी मेन क्या बना हमारे पास, C2H5Cl प्लस H3PO3। कैसे बना,
हाइड्रोजन कितने की डिमांड कर रहा है? 3 की। आगे रिएक्शन में क्या किया हमने? 3 लगाया। हाइड्रोजन भी 3 चाहिए और ऑक्सीजन भी 3 चाहिए, तो आगे हमने 3 लगा दिया और फिर हमारे पास प्रोडक्ट आ गया C2H5Cl। हमें हैलाइड को बनाने, ध्यान क्या रखना है कि कौन सा रिएजेंट क्या बाई प्रोडक्ट शो कर रहा है, तो मेन प्रोडक्ट को वो देगा ही देगा। नाउ द नेक्स्ट मेथड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। आपके सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड। सो और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई थायोनिल क्लोराइड इज यूज्ड टू प्रिपरेशन फॉर द हैलाइड। हैलाइड को बनाने के लिए हमने थायोनिल क्लोराइड क्यों यूज किया? थायो मतलब होता है सल्फर और एजो मतलब होता है नाइट्रोजन। देखिए अब कैसे अल्कोहल से रिएक्शन चल रहा है। अल्कोहल से रिएक्शन किया किसने? थायोनिल क्लोराइड ने। जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया कि आपको क्या करना चाहिए, पहले बाई प्रोडक्ट इसका SO और इसका O। क्या बाई प्रोडक्ट निकला? SO2। इसका H और इसका Cl, बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? HCl। बचा एक Cl, वो इसने ले लिया और प्रोडक्ट बन गया C2H5Cl। सिंपल मेथड। ये देखिए मैंने अभी जितने भी मेथड आपको कराए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन सभी मेथड में हमने मेनली क्लोराइड्स के प्रोडक्ट बनाए कि हम आपको इसके साथ साथ जो समरी के लिए तैयारी करते थे, फ्रॉम एल्कीन में आपने 2 मेथड लगाए थे। एक सिमेट्री वाला, जब तक आप ये नोट कर रहे हैं तो मैं इसको लिख दे रही, सिमेट्री वाला, और दूसरा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के अंदर भी 2 मेथड पढ़े थे आपने। मार्कोनी का, ये हमारा फ्लो चार्ट तैयार होता जा रहा है, मार्कोनी का और एंटी मार्कोनी का। एंटी मार्कोनी का, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास सारे हैलाइड के प्रिपेयर हो गए। अब हैलाइड के बाद, क्योंकि हमारे पास केवल एक मेथड तो है नहीं कि हम खाली क्लोराइड के प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें ब्रोमाइड के भी बनाने हैं और आयोडाइड के भी बनाने हैं। तो ब्रोमाइड के लिए अगला मेथड जो आ रहा है वो आपके स्पेसिफिक है, नेम रिएक्शन। इसके बाद हम अगला मेथड यूज करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर मेकिंग द फ्लोरो प्रोडक्ट। हमें फ्लोरो प्रोडक्ट बनाने के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करना पड़ता है। ये आपको अभी सभी के लिए मैंने या अभी सारे समझा दिया, वीडियोज में बार बार देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने प्रोडक्ट बनाए, और साथ साथ में आपकी समरी भी तैयार होती जा रही है कि हमने क्या क्या रिएक्शन के रिएजेंट्स यूज किए। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद स्वार्ट्ज रिएक्शन। Schwarz reaction is specific for fluoroproduct. This reaction is also be called as a ion exchange method. इस मेथड को हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस मेथड से हम लोग केवल फ्लोरो के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये बनाते हैं हम लोग फ्लोरो के प्रोडक्ट। इसका जो एजेंट होता है वो होता है AgF, COF2 और Hg2F2। आपको एजेंट्स याद रखने कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा एजेंट को यूज किया। देखिए आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक्चुअल में फ्लोरीन जो होता है वो पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है। फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होते हैं वो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, दैट मींस द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, बहुत एनर्जी निकलेगी, रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगा, एक्सप्लोसिव, धमाकेदार, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे रिएक्शन को बनाना इजी तो नहीं, लाइक दैट। जैसे छोटी सी बात बताऊं, अपने घर में मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, आपको देखेगा वो मोबाइल से आराम से खेल रहा है और अचानक आपने उसके हाथ से मोबाइल अगर छीन लिया, क्योंकि उसका साइज छोटा है, वो क्लोरीन बन गया, तो क्या होगा? रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है, रोएगा, चिल्लाएगा, गिर जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो देने नहीं देगा अपनी चीज को। लेकिन इसी के साथ अगर हम बड़े ने किसी ने छीन लिया तब तो वो एक्सप्लोसिव, वो एकदम से एग्रेसिव हो गया। लेकिन अगर उसी का बड़ा भाई उसको कुछ और दे के बहला के उससे छीन लेता है तो वो आसानी से दे देता है। इसके मतलब है आयन एक्सचेंज मेथड लगाना जरूरी पड़ा। क्यों? हमने क्या किया, इथाइल हमने नहीं बल्कि स्वार्ट्ज साहब ने क्या किया, क्लोराइड के प्रोडक्ट बहुत सारे बन गए।
अब रिएक्शन किससे कराई, AgF से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका Ag और इसका F। देखिए छोटा भाई बड़ा भाई तो बोला, क्लोराइड छोटा है तो क्लोराइड उससे ब्रोमाइड और भी, आयोडीन और भी। क्लोराइड आयन एक्सचेंज हो रहा है, केवल AgCl से रिएक्शन हुई, क्या बन गया, AgCl, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या आ गया, C2H5F। और क्लोराइड का प्रोडक्ट बनाने का केवल एक ही मेथड होता है, उसका नाम होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। दिस इज स्पेसिफिक फॉर फ्लोरो प्रोडक्ट, ये केवल फ्लोरो प्रोडक्ट के लिए यूज किया है। आप पहले क्लोराइड्स के प्रोडक्ट बनाइए। हमने पहले बनाया इथाइल क्लोराइड, और इथाइल क्लोराइड अभी आपने देखा हमने कई सारे मेथड लगाए जिनसे इथाइल क्लोराइड बनाया, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया इसमें इथाइल क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट मेथड फॉर the production of the ब्रोमो प्रोडक्ट। ब्रोमो के प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने अगला मेथड यूज किया, दिस इज कॉल्ड एज द हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन, हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर ब्रोमो प्रोडक्ट। अभी आपको बताया क्लोरीन का साइज छोटा है, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक मेथड हमने यूज किया। ब्रोमाइड को क्यों स्पेसिफिक यूज किया, क्योंकि एक्चुअल में ब्रोमो जो होता है वो वोलेटाइल लिक्विड है, ये इसकी कंडीशन है, इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल मतलब ये उड़ जाता है, और जो उड़ जाते हैं ना उनके रिएक्शन करने के लिए हमें कंडीशन सेटअप करनी ही पड़ती है। अब देखिए हर्ट्ज-डिकर ने क्या यूज किया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इन्होंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO, और चूंकि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, सॉल्ट बना लिया। रिएक्शन कराई हमने Br2 से, ब्रोमीन से रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए रिएक्शन किसका होगा, ये Ag इस Br से रिएक्शन करके AgBr अलग कर देगा, और CO2 अलग रिमूव हो जाता है। देखिए पहले मैंने आपको विषय कहा पहले बाई प्रोडक्ट निकालो। अब क्या बचा अपने पास, R और Br, ये हो गया RBr। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग द एलिफेटिक एज वेल एज फॉर मेकिंग द एरोमेटिक। इस मेथड से हम एलिफेटिक के ब्रोमो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और एरोमेटिक के। देख लीजिए कैसे, इन केस मैंने एसिटिक सिल्वर एसिटेट ले लिया, रिएक्शन कराया ब्रोमीन से, प्रोडक्ट बना CO2 अलग रिमूव हो गया, AgBr अलग रिमूव हो गया, और हमारा प्रोडक्ट आ गया CH3Br। ठीक है, ये क्या हो गया, सिल्वर एसिटेट है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड। हम इसकी जगह यहाँ CH3 की जगह CCH5 भी ले सकते थे, नाम हो जाता सिल्वर बेंजोएट, तो क्या बन जाता, ब्रोमो बेंजीन का प्रोडक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये मेथड हो गया हमारा किसका, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोमो प्रोडक्ट। एंड लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन इज, दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइडो प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द Klingstone reaction. Klingstone reaction, it is also be called as the ion exchange method. इस मेथड को हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड के नाम से जानते हैं, एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर मेकिंग द आइडो प्रोडक्ट। ये मेथड भी आपको आइडो के प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, एंड देयर इसका जो स्पेसिफिक रिएजेंट है वो है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सोडियम आयोडाइड के साथ में जब हम एसीटोन मिलाते हैं तो आइडो के प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए कैसे, C2H5Cl रिएक्ट विद NaI, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन हुआ, आयन एक्सचेंज मेथड यूज किया, इसका Na और इसका Cl रिमूव हो गया, फाइनली इट इज कन्वर्टेड टू C2H5I प्लस NaCl। तो आइडो के प्रोडक्ट भी बन गए। देखिए आज मैंने आपको पूरी प्रिपरेशन बता दी। फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिपेयर फ्रॉम हैलोजनेशन फ्रॉम एल्केन। इन एल्केन देखिए आपके सामने एक फ्लो चार्ट भी तैयार हो गया। फ्रॉम एल्केन यूज द हैलोजनेशन मेथड, एंड इन एल्केन हमारे पास दो कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी, कौन कौन सी, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट। एक हो गई आपकी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस में आपको ने क्या देखा,
all the hydrogen atom they get substituted. सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट वन बाय वन एक एक करके हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास हैलोजेनेशन के अंदर दो कंडीशन हो गई, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट. फिर आपकी इसके बाद मैंने सेकेंड मेथड लगाया एल्कीन. एल्कीन में हमारे पास सिमेट्री भी हो सकती है, इनसिमेट्री भी. सिमेट्री होती है तो इक्वल डिवीजन हो गया, केवल प्रोडक्ट बनेगा. अनसिमेट्रिकल के अंदर दो मेथड, मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी. देन आफ्टर फ्रॉम अल्कोहल चार रिएजेंट यूज कर सकते हैं, HCl, PCl5, PCl3 और एसोसिएट. नाउ फॉर मेकिंग द फ्लोरो प्रोडक्ट, फ्लोरो का प्रोडक्ट बनाना है तो आयन एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे. क्लोराइड बना लेंगे, फिर AgF, COF2 और Hg2F2 से हम आयन को एक्सचेंज करेंगे और मीन प्रोडक्ट बनाएंगे. क्लोरीन को बनाना क्यों मुश्किल है? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलेस्ट साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नाउ फॉर द ब्रोमो प्रोडक्ट particularly use the Mansuriker reaction. It is also very specific because bromine is a volatile liquid. ये भी एक ही एक मेथड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये volatile liquid है. Silver salt of fatty acid react with bromine in presence of carbon tetrachloride, then it gives the bromo product. Now the last method, this is called as the Planck-Stein reaction, and in Planck-Stein reaction this is also an ion exchange method. In this method chloride product react with sodium iodide in presence of acetone, then it gives the iodo product. Now आज आपका पूरी प्रिपरेशन हैलाइट की क्लियर हो गई. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.